So good morning students. Today we will learn 11th chapter 2 and name of chapter is meaning and fundamental of double entry bookkeeping. Meaning and fundamental of double entry bookkeeping. We have already done with chapter number 1 and we have already taken the exams. So let us start the concept. Now first point is meaning of double entry bookkeeping. Now double entry bookkeeping is a most scientific method. What's the method? Scientific method of recording all monetary transaction in the books of account. So it is a scientific method. Double entry bookkeeping is most scientific method of recording all monetary transaction in the books of accounts. And in double entry system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business unit. इसमें कितने aspect हैं? दो aspect हैं. One is receiver of the benefit and another is giver of the benefit. First, if one effect is debit and another effect is credit. So every transaction under double entry system has two effects. One is debit and another is credit. It's two aspects. लिखा इधर every business transaction involves two person. So 2% की मैं खुद से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता. Say for example A sold goods to B. So in this case there are two persons, Mr. A and Mr. B, or two accounts or two parties, Mr. A account, okay, Mr. B account, or I can say sale account. Two parties means Mr. A and Mr. B, where one is a receiver of the benefit and another is giver of the benefit. Sir, kaise? Now see, A sold goods to B on credit. In this case, A is giver of the benefit and B is receiver of the benefit. A ने गुड सेल किया तो A बेनिफिट दे रहा है. किसको दे रहा है? B को दे रहा है. तो A is giver of the benefit and B is receiver of the benefit. Okay. तो टू एस्पेक्ट क्या है? वन इज रिसीवर एंड अदर इज क्या आएगा? गिवर ऑफ द बेनिफिट. ओके. नाउ नेक्स्ट, recording of two aspect of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. तो इसका पूरा bookkeeping double entry मतलब क्या है? Recording of two aspect. Which transaction? Monetary transaction, where in the books of account in terms of what? Debit and credit. Debit and credit means one is receiver of the benefit and another is giver of the benefit, is called as double entry system of bookkeeping. Okay. Now next part. Now methods of recording accounting information. Okay. तो यहाँ पे दो मेथड है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो कौन से? फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम एंड सेकंड इज इंग्लिश सिस्टम. तो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन देयर आर टू सिस्टम. फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम एंड सेकंड इज इंग्लिश सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम is further divided to single entry system and double entry system. So recording of account information, there are two systems. First is Indian system and second is English system. English system is further divided into two, single entry system and double entry system. Okay, so now let us learn in detail each and every system. Okay. Now first is Indian system.
See, when books or accounts are kept or recorded in vernacular language, what's language? Vernacular language means Hindi, Marathi, Gujarati, Urdu. So when books or accounts are maintained in vernacular language such as Hindi, Marathi, Gujarati, then that system is called as Indian system. Books is called as Bahis and system is called as Bahi Kata system. Books means हिंदी मराठी में बोलते हैं वही, सेम वे हिंदी में क्या बोलते हैं बही. तो भाई जो बुक होता है उसको हम क्या बोलते हैं बही, और उसको हम उस बही में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बही खाता सिस्टम. एंड बही खाता सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज देसी नामा सिस्टम और महाजनी सिस्टम. ओके, तो इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स in Indian language, means vernacular language such as Hindi, Marathi, Gujarati, Urdu, etc. Okay, the accounts are written in long book. The accounts are written in long book called as bahis. एंड द सिस्टम, जो जिस बुक में हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बहीस बोलते हैं. वो बड़ा सा बुक होता है, तुमने देखा होगा पुराने जमाने में पिक्चर में लाल कलर की बुक होती है जो ऐसे खुलती है, ऐसे. ओके, ऐसे नहीं खुलती वो ऐसे नहीं खुलती, वो खुलती है ऐसे खुलती है. राइट, पॉइंट क्लियर. रिवर्स केस जैसे नोटपैड खुलता है ऐसे ऊपर खुलता है. तो द अकाउंट्स आर रिटन इन लॉन्ग बुक कॉल्ड एज बहीस एंड सिस्टम इज कॉल्ड एज बही खाता सिस्टम. उस बुक में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. खाता मींस अकाउंट, तो उसको बोलते हैं बही खाता सिस्टम. एंड दिस सिस्टम इज मोनली नोन एज देसी नामा. देसी मींस गांव की लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज. तो देसी लैंग्वेज क्या है? हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू. और सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाजनी सिस्टम. पुराने जमाने में जो महाजन होते थे, ओके, उसके एक बंदा होता था उसको बोलते हैं मुनीम जी. मुनीम में जो अकाउंट्स मेंटेन करता है. और महाजन क्या, जो लोगों को पैसे देता था काई के लिए, कोई भी खेती-बाड़ी करना है, बेटी की शादी करनी, कुछ भी अगर पैसे की जरूरत है तो गांव को लोगों को महाजन होता था. महाजन क्या देता था? वो उन लोगों को पैसे देता था इंटरेस्ट के साथ. ओके, इंटरेस्ट पे. पॉइंट क्लियर. तो वो भी अकाउंट्स मेंटेन करता था. तो अकाउंट्स कौन मेंटेन करता था? महाजन मेंटेन करता था. ओके, तो सिस्टम क्या बन गया? महाजनी सिस्टम हो गया. ओके, पॉइंट क्लियर. इसमें और भी पार्ट है. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग. डबल एंट्री में क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज क्या आएगा? टू इफेक्ट्स. वन इज डेबिट and is credit. I can say one is zero benefit and a is given benefit. इसमें ऐसा नहीं. In this accounting, it is not based on double entry system accounting. Thus, it is not scientific accounting system. अगर double entry होता, double entry is scientific. Okay, and this is not scientific. I can say unscientific accounting system. Even this system is used in India by small business organ. अभी भी ये सिस्टम यूज होता है. अभी सिस्टम यूज होता है जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है जो गांव में है. सी, मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में वी राइट अकाउंटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. वी मेंटेन डबल सिस्टम. जिन गांव में बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो दे मेंटेन बुक्स इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज. ओके, एंड इज मेंटेन बाय स्मॉल बिजनेसमैन. जो छोटे बिजनेसमैन है उन लोग उसको मेंटेन करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इसके बताएगा इंग्लिश सिस्टम आएगा. क्या? इंग्लिश सिस्टम आएगा. ओके, ओके. नाउ नेक्स्ट है इंडियन सिस्टम. क्लियर, बहुत सिंपल है. अब हम जाएंगे इंग्लिश सिस्टम पे. तो इंग्लिश सिस्टम में देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम and second is double entry system. So English is divided into two parts, single entry system and double entry system. First, let us learn single system, then we'll learn double entry system. This system of accounting records only cash and personal account. इन लोग दो ही अकाउंट मेंटेन करते हैं. एक है कैश अकाउंट
मीन्स कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। और पर्सनल अकाउंट, किससे कितना पैसा आया, ओके, या किससे कितना पैसा लेने का है, किसको कितना पैसा देने का है। तो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके, बिजनेसमैन मेंटेन्स ओनली टू अकाउंट्स, दैट कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ये चैप्टर तुम लोग को सिलेबस में है। ओके, तो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बिजनेस एंड मेंटेन्स ओनली टू अकाउंट्स, दिस कैश अकाउंट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, एंड पर्सनल अकाउंट, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, ओके, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। सर ऐसा क्यों, ये मेथड अनसाइंटिफिक कौन सा है ना? सपोज ये सिस्टम के अंदर अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। सर बताओ क्यों नहीं निकाल पाएंगे? हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। हम कोई भी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, कि हम कोई भी असेट्स कितना है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अगर हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएंगे। ओके, इसलिए हम एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड, कितना कैश आया तो उसमें कैश की रिकॉर्ड करेंगे, कितना हमने पेमेंट किया तो पेमेंट की एंट्री करेंगे। ओके, इससे इतना लेने का है, इससे इतना देने का है। ओके, तो हम सिर्फ एक इफेक्ट दे रहे हैं, दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहे। वी आर गिविंग वन इफेक्ट एंड वी आर नॉट गिविंग अनदर इफेक्ट। मींस सिंगल एंट्री मींस ओनली सिंगल इफेक्ट, हम एक इफेक्ट दे रहे हैं, दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहे। ओके, इसलिए अनसाइंटिफिक है। क्या है? अनसाइंटिफिक मींस व्हाट? डबल एंट्री। हम हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? डबल एंट्री बोलेंगे। यहाँ पे हम हर ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट देते हैं। ओके, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। वन इफेक्ट इज गिवन, इफेक्ट इज नॉट गिवन। ओके, तो इस मेथड में हमको अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, हम नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। इवन वी कैन नॉट जज और we cannot analyze our financial position। हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे? तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको तीन चीज जरूरत है: असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बैलेंस में क्या चाहिए हम लोग को? असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ओके, पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे हम असेट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लायबिलिटीज अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी कैपिटल निकाल सकते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज जो कैपिटल, लेकिन असेट अकाउंट भी नहीं है और लायबिलिटी अकाउंट भी नहीं है, तो कैपिटल निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है? ओके, इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने बता दिया, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या चाहिए? असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लोग को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ना ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम पड़ेगा, ना ही हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगी। बिकॉज अंडर सिस्टम वी गिव only one effect, second effect is not given, and other system we maintain only two accounts, this cash account and personal account। लेकिन ऐसा डबल एंट्री सिस्टम में नहीं। ओके, अभी भी कुछ बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, ओके, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, ओके, जैसे किराने की दुकान है, वड़ा पाव वाला है, फास्ट फूड सेंटर है, उन लोग अभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। पॉइंट क्लियर? नाउ विल गो टू डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री बने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, फिर से डिस्कस करेंगे। This system records complete detail of business transaction। हम बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर? सारी मींस we maintain all the accounts, asset, liabilities, capital, income and expense। तो इससे क्या होगा? We can ascertain profit and loss of the business, we can analyze the financial position of business। तुमको याद रखो, अगर तुमको बैंक से लोन चाहिए, ओके, बैंक से लोन चाहिए तो बैंक will see your what? Financial position। बैंक will also see your profit and loss। अगर नया बिजनेस है तो चेक करेंगे बिजनेस कैसा है, ओके, कौन इन्वेस्टर है, लेकिन बिजनेस चल रहा है तो विल दे चेक योर
financial position and your profitability. Okay, तो this system records complete yield, means हर transaction के हम दोनों ही fact record करेंगे. It is the most scientific method of recording all business transactions. ये क्या है? अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है. यहाँ पे कैश अकाउंट एंड मेंटेन करेंगे, यहाँ पे हर एक डेज मेंटेन करेंगे. यू कैन लर्न दिस एज एन डिस्टिंग्विश आल्सो. Under this system, double or two-fold effect of each transaction recorded. Double means two effect. Two-fold means two effect. One is debit and another is credit. One is receive the benefit, another is giver of the benefit. तो यही लिखा है इधर. That is, one account is debited and another account is credited. एक account debit करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? Credit करेंगे. Okay? तो ये क्या है? यहाँ पे कैश एंड पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे कंपनी डिटेल्स. ये अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है. It does not provide accurate information about financial position of the financial position and schedule for both business. इसमें it gives accurate information. It gives accurate information of profitability of the business, means profit of the business and financial position of the business. Or and in this ये कभी कभी कोई बीच में जब ऑन होते हैं घर वाले पीछे से चिल्लाते रहते हैं. Now next, you should avoid such things. It is just unscientific, this is scientific. And under double system, every transaction has two effects. One is debit, another is credit. Okay. Now we learn. इसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. नाउ डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स क्या है, मींस रूल्स क्या है. ओके, तो देखो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी डिस्कस करेंगे. ओके, चैट बॉक्स से कुछ किसी का मैसेज आया है. डबल अभी अभी समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. ओके प्रांजल, डोंट टेक टेंशन. ओके प्रांजल फिर से एक्सप्लेन करो, एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर से मैं रिवाइज करेंगे, कोई इश्यूज नहीं. और प्रिंसिपल्स करोगे तुमको आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डबल सिस्टम. तो देखो इधर, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स और टू पार्टीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट. तो यहाँ पे दो पार्टीज है ए और बी, और दो अकाउंट इफेक्ट करेगा. ओके, ए ने परचेज किया है तो ए परचेज रिकॉर्ड करेगा, और किसको सॉरी ए ने क्या किया है, सेल किया है, वो सेल रिकॉर्ड करेगा. किसको सेल किया, बी को सेल किया. तो यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, ए अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. अब ये दो पार्टीज है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. वन इज रिसीव द बेनिफिट एंड गिवर ऑफ द बेनिफिट. इस एग्जांपल में A is giver of the benefit and B is receiver of the benefit. Okay. Now ये two account कौन सी है? Two account means one is receiver of the benefit and another is giver of the benefit. मैं एग्जांपल बताया, A ने गुड सेल किया B को, तो A is giver and B is receiver. Okay. Next, if one account is debited then another account is credited. डबल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट करोगे तो दूसरा अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. से फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं ऑलवेज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी. ए ने गुड्स भेजा था बी को, अब बी से कैश आया. ओके, तो यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा और बी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. वो मैं ऐसे क्यों बताऊं, बाद में समझेंगे हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे. सिर्फ बताना है, यहाँ पे दो अकाउंट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा. तो अभी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और बी अकाउंट. बी से कैश आया तो कैश अकाउंट एंड बी अकाउंट, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा और बी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो इसका मतलब है वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. ओके, नेक्स्ट, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. एक अकाउंट डेबिट करोगे तो दूसरा अकाउंट हमको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड क्रेडिट.
और जितना तुम अकाउंट डेबिट करोगे, जितना अमाउंट तुम डेबिट करोगे उतना ही अमाउंट तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, टैली होगा। तो एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर डेबिट में तुमने 1 लाख लिखा है तो क्रेडिट में भी तुम क्या लिखोगे, 1 लाख लिखोगे। क्या लिखा है इधर, क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट। तो every debit has equal and corresponding credit of same amount। जैसे एग्जांपल बताया, कैश अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में लिखोगे 1 लाख और बी में लिखोगे 1 लाख, क्योंकि कैश कितना आया, 1 लाख आया, बी ने कितना कैश दिया, 1 लाख दिया। ओके, तो एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट। अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो टैली नहीं होगा, कुछ ना कुछ अकाउंट में डिफरेंस आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था, अंडर सिंगल एंट्री वी कैन नॉट ascertain प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्यों सर, since we do not record income and expense। okay, even under single entry system we cannot analyze the financial position of the business, but under double entry system we can analyze financial position of the business, since under this system we maintain asset account, liability account, asset account, लाइबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सिंगल एंट्री डिसएडवांटेज है, अभी 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं हम यहाँ पे, हर एक अकाउंट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन है सब हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर।